I will take your 2 minutes for your removal of doubts regarding the BCI, है ना. I am getting repeatedly calls and WhatsApp कि what has happened, what is going to happen with the BCI notification. So let me clarify this. See, earlier, sometimes about 2002-3, there was a rule that you must have 3 years experience as an advocate to be eligible for the post of PCSJ. That rule was done away by the order of the Supreme Court, and there is a history for that. Why this rule was removed? Number one, because Supreme Court का ये order था. Supreme Court wanted that the number of seats, number of judicial vacancies should be filled at earliest. जल्दी से जल्दी भरी जाए. उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पर पाई गई कि जो 3 years की जो क्लॉज थी, वहां तक आने के बाद में nobody is interested in going to judicial services. Very few candidates wants to appear in that, because after the gap of 3 years, someone is diverted towards his business, someone is diverted towards practice, or someone is everywhere. But very few are interested in the, because sometimes you are doing 3 years LLB, पहले ग्रेजुएट करने, फिर 3 साल के LLB, फिर 3 साल की प्रैक्टिस के बाद में किसी के पास इतना पेशेंस नहीं था. तो एक वेल थॉट स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, वेल थॉट स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस रूल को खत्म किया था कि नो. उसमें यह आया कि 3 साल के अगर हम लोग ये खत्म कर देंगे रिक्वायरमेंट, तो every person who is going to become a judge, he should be apprised with the procedural and everything. Otherwise, it will be very difficult to conduct the business of the court. So therefore, 1 year training was made mandatory. So freshers will be eligible to appear in the judicial service exams, and thereafter, after selection, they will have to go 1 year training. This was the new mechanism of the selection. ठीक है. अब उससे प्रैक्टिकली दिक्कतें कहाँ आ रही हैं? यह है ईगो का क्लैश. एक यंग क्यूट सा बच्चा सामने बैठ जाता है सीट पर, उसके अंदर इतना मेच्योरिटी लेवल भी नहीं होता, और भी उसके सामने होते हैं सीनियर एडवोकेट्स कई बार, तो वो उतना रिस्पेक्टफुली या उस तरीके से अगर वो नहीं हो पाई बात, तो वो कहीं ना कहीं ये समझा जाता है कि इनके जो अभी नए बच्चे आ रहे हैं, उनके अंदर वो मेच्योरिटी लेवल नहीं है, और उसको फिर हमने नाम दे दिया कि उनको प्रोसीजर की नॉलेज नहीं है ना. इसलिए बीसीआई ने ये एप्लीकेशन मूव किया सुप्रीम कोर्ट में. बीसीआई इज नॉट द फाइनल अथॉरिटी इन दिस केस. ये डाउट हटा लें, बीसीआई के पास ये पावर नहीं है कि वो डिसाइड करे कि कौन जज बनने की क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए. देयरफॉर बीसीआई ने अपनी एक एप्लीकेशन मूव की है सुप्रीम कोर्ट में फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ इट्स ऑर्डर. नाउ इट्स अप टू सुप्रीम कोर्ट टू मॉडिफाई दैट और टू नॉट टू मॉडिफाई दैट. अब इसमें प्रोसीजर क्या होगा? This application has been moved on by the BCI. Thereafter, notice has been, to my knowledge, issued to the concerned authorities. Concerned authorities will be the Law Department of the Government of India. Other state governments may be there. Now they will file their reply, and it's a time-taking process. So even if Supreme Court is going to change this, it will take few months. It is not going to happen overnight. Number one. Secondly, even if suppose you are Supreme Court judge, and if you go back to the 15 years back history, तो आपको क्या लगेगा? If you are going to change again now, or you are reverting back to the old rule, it means what? Accepting that this was the wrong decision. आपने गलती की, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं करना चाहेगी इसमें ऐसा करना. वो क्या करेंगी कि जो कंसर्न है बीसीआई की, द कंसर्न ऑफ बीसीआई शुड बी एड्रेस्ड इन सम अदर वे, एंड दैट वे बी थ्रू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोसीजर. देयर मे बी सम काइंड ऑफ चेंजेस इन द सिलेक्शन प्रोसीजर, मीन्स देयर मे बी सम मोर वेटेज ऑफ द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस in your syllabus, more weightage to the CPC, more weightage to the CRPC, like this, more weightage to the evidence. So there are other ways also to address the concerns of the BCI. It only just imposing 3 years compulsory practice experience is not the only way out to address the concern. So there are least chances that Supreme Court will modify its order according to the wish of the BCI. So आपको उस पॉइंट पर लॉजिकली कंसर्न बिल्कुल नहीं होना चाहिए. दूसरी बात करते हैं कि
वो आपको कंट्रोल में भी नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपका काम है एट प्रेजेंट आपके हाथ में सिर्फ ये है कि आप अपने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करें, उसकी जैसे इसको कॉन्स्टिट्यूट किया आपने, बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें उसकी और आगे बढ़ें। कुछ काम अपनी किस्मत पर छोड़ दें। ये गलती भूल करके ना करें कि पहले आप इस पे कोई क्लैरिटी आ जाए कि बीसीआई रूल चेंज कर रही है नहीं कर रही है, फिर मैं तैयारी करूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि 6 महीने 1 साल तक आप हैंग रहें और 1 साल बाद ये बीसीआई की एप्लीकेशन डिसमिस कर दी जाए, कि कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को प्रोविजंस को मैं पिछले 25 साल से सुनता आ रहा हूँ कि अब हो जाएगा अब हो जाएगा, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। ये इतने ऐसे जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं या सिस्टम मैकेनिज्म होता है वो ओवरनाइट इस तरीके से चेंजेस नहीं होते हैं, ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होते हैं। हाँ, ये प्रपोजल अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मूव किया होता है ना, ये प्रपोजल खुद सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिवली मूव किया होता, कोई कमेटी गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी होती, कोई सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी होती, उसने मूव किया होता, तब तो हो सकता था कि इसमें शायद वेटेज आ जाए। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए आप लोग अपना जो कंसंट्रेशन है, अपना धैर्य, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब नहीं करेंगे, धैर्य बना के रखें और जैसे पहले पढ़ाई कर रहे थे अपने उसी मिशन मोड पर आप लोगों को तो अभी जज बनना है 2-3 महीने के अंदर, क्यों परवाह करते हो आप लोग। इसको डिसीजन लेने में कम से कम 1-2 साल लग जाएंगे। पहले रिप्लाई आएंगे सबके, फिर हो सकता है काउंटर आएंगे। एंड ऑल्सो हम लोगों ने खुद एट माई इनिशिएटिव हम लोगों ने खुद भी एक आप सबके आर्गूमेंट्स और वो सब स्टडी करना शुरू कर दिया है। बीसीआई की कॉपी की पिटीशन के लिए बोल दिया है कि उन्होंने क्या पिटीशन फाइल किया, लेट उसको स्टडी करते हैं। और खुद हम लोग यानी कि मैं पर्सनली आई विल ट्राई टू रिप्रेजेंट दी स्टूडेंट कम्युनिटी एज वेल। वहाँ पर मैं करने की कोशिश करूँगा। मुझे ऐसा लगा कि शायद डिफिकल्ट होगा, कंसिडरिंग अदर एडवोकेट है, जो भी होगा तो हम लोग किसी और सीनियर एडवोकेट को ले लेंगे जिसकी फेस वैल्यू है, तो कोशिश करेंगे इन पॉइंट्स को एड्रेस किया जाए। तो बहुत मुश्किल काम नहीं है ये। बीसीआई की कंटेंशन 2-3 कंटेंशन की वो उतने प्रोसीजर लॉज नहीं आते हैं, उनको पोलाइट नेचर नहीं है, गुड मैनर्स नहीं है, तो ये ऐसी चीजें हैं। इसके लिए 3 साल तक रोकना सही नहीं है, क्योंकि वहां से सिस्टम हैंग होता है, वहां से अच्छे ऑफिसर्स मिलने बंद हो जाएंगे जुडिशरी को। उस सिस्टम को, उस कंसर्न को दूसरे तरीके से एड्रेस किया जा सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की अप्रोच हो सकती है कि ठीक है ये प्रॉब्लम आ रही है, हम लोग को इसको एड्रेस करते हैं, इनकी ट्रेनिंग में ही वो पार्ट लेकर आएंगे, हम लोग किसी तरीके से मॉडिफाई करते हैं ट्रेनिंग को। सो विद दीज वर्ड्स आई थिंक अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए।